اب آپ کو اگر یہ عمل کرنا ہے بنا اسکیپ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، ابھی آپ کو ماہ محرم الحرام کے آخر میں اب آنے والا مہینہ جو ہے وہ سفر المظفر کا ہے۔ اس کے اندر اکابرین کے ہاں، علماء صالحین کے ہاں، عاملین کے ہاں ایک شور ہوتا ہے حزب البحر کے وظیفے کا، حزب البحر کے عمل کا۔ یہ کافی علماء کرام اس عمل کو کراتے ہیں۔ اب یہ عمل کیا ہے، کیوں یہ کراتے ہیں، مسجدی میں اعتکاف کیوں ہوتا ہے، اس کی تعداد پڑھنے کی کیا ہے، یہ کہاں سے ہمیں ملا ہے، اس کے بارے میں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جو شمالی مراکش کے قصبہ سکتہ میں تقریباً 593 ہجری اور 1196 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، وہ ایک عالم کے صاحبزادے عالم گھرانے کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کا نسب سلسلہ جا کر ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جا کر ملتا ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ اکابرین نے، یہ اصل میں صلحاء کا عمل ہے، نیک لوگوں کا عمل ہے، اس کے بارے میں کافی اکابرین نے ان کا سلسلہ ایسے بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن علی ابن عبداللہ ابن عبد الجبار ابن یوسف، یہ سلسلہ ہے ان کا۔ یہ قصبہ سکتہ کے اندر، شمالی مراکش کے اندر پیدا ہوئے، اور انہوں نے بہت چھوٹی سی عمر میں قرآن کریم حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد بہت جلدی اللہ کی دی ہوئی توفیق، اکابرین کا ان کے اوپر سایہ، بہت جلدی عالم بن گئے اور فقہ مالکی کے ایک بہت بڑے فقیہ بن کے سامنے آئے۔ اس کے بعد ان کو شوق ہوا کہ میں کسی کتب سے جا کر کے ملوں، ان سے ملاقات کروں، اور عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں شوق ہوا کہ میں کسی کتب سے ملنے کے بعد، کسی اکابر سے ملنے کے بعد اپنی جو سلسلہ روحانی ہے اس کے اندر بھی فوقیت حاصل کروں، اس کو اپنی اصلاح بھی اس کے اندر کروں۔ تو ان کو معلوم ہوا کہ بغداد اس وقت ایک بہت بڑا عالمی مرکز بنا ہوا تھا، وہاں پر ایک شیخ ابو الفتح الوسطی بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ یہ ان کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد اس کے بعد سلسلہ یہ بنا، ان سے ملاقات کی، ان کو اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا شیخ ابو الفتح الوسطی نے کہ تمہارے علاقے کے اندر، یعنی شمالی مراکش یعنی عراق کے اندر، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، ان سے آپ رابطہ کرو۔ اس کے بعد خیر یہ رابطہ ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، سلسلہ آگے بڑھا۔ ابھی سلسلہ ساذلی، یہ کتابوں کے اندر سلسلہ ساذلیہ موجود ہے۔ تمام سلسلے جو ہمارے 4 سلسلے موجود ہیں، سبھی اکابرین اس عمل کو مانتے ہیں، اس عمل کو کرتے ہیں، اور اس عمل کو کرنے کے بعد بہت سے اکابرین اللہ کے بہت نزدیک ہوئے، قطب بنے، ابدال بنے، غوث بنے، ولی بنے اس عمل کو کرنے کے بعد۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان، ملک ہندوستان کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کے عامل تھے۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کے عامل تھے۔ ان کے اوراد و وظائف میں یہ عمل باقاعدہ شمار ہوا کرتا تھا، یعنی وہ اس کو مستقل کیا کرتے تھے۔ اب اس کی اکابرین نے، علماء کرام نے ایک سفر کا مہینہ جو اس کو طے کیا گیا ہے، آنے والا سفر المظفر، اس مہینے کے اندر اس عمل کو کیوں طے کیا گیا ہے۔ ایک وقت جب شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ایک جہاز کے اندر سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، سفر حج پہ ان کو جانے کا ارادہ کیا، اور وہاں پہنچ جیسے وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی
कश्ती अचानक समंदरी तूफ़ान में घिर गई। समंदरी तूफ़ान में उस समंदरी तूफ़ान ने घेर लिया। उसके बाद शेख अबुल हसन शादी रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन अकाबरीन का कौल है कि वो सोए हुए थे या मुराकबे में थे। उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। उस मुराकबे के अंदर ये अमल, ये वजीफ़ा हिज़्बुल बहर जिसे हम लोग कहते हैं, इसका अमल मुस्तकिल हम लोग कराते हैं, अपने यहाँ भी होता है और दूसरी अकाबरीन के यहाँ भी इसका मुस्तकिल मामूल है। सफ़र मुज़फ़्फ़र के महीने के अंदर ये अमल किया जाता है। अब आने वाला जो महीना है वो ऐसा ही महीना है कि उसके अंदर ये अमल जगह जगह चिल्लागाह होगी, चिल्लागाह लगेगी और चिल्ले किए जाएंगे, इसका वजीफ़े पढ़े जाएंगे। अब कुछ अकाबरीन के यहाँ तो दिन में 24 घंटे में एक मरतबा पढ़ा जाता है, कुछ के यहाँ 24 घंटे में 3 बार पढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ जो इसका सिलसिला है, जो हम लोग अपने यहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग अपने यहाँ इसका वजीफ़ा करते हैं, उसकी तादाद पहले दिन जो हम करते हैं 3 दिन का एतकाफ़ कराने के बाद, पहले दिन में 121 मरतबा, दूसरे दिन 121 मरतबा और तीसरे रोज़ 125 मरतबा, यानी इसकी कुल तादाद 367 हुई। ये तादाद हमारे यहाँ इसकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह इस बार भी इसकी तादाद ये बाकायदा की जाएगी। अगर कोई शख्स इसका अमल हमसे रब्ता करके करना चाहे, और मस्तूरात भी हमारी कर सकती हैं इस अमल को, मगर ये अमल मिलेगा कहाँ? असल मकसद है ये अमल चाहे ये कौन सी किताब के अंदर है। बहुत सी किताबें हमारे मोबाइल के ऊपर भी बहुत से ऐप अपलोड कर रखे हैं काबरीन ने, उस ऐप के अंदर हिज़्बुल बहर का अमल मिल जाता है। अगर कोई साहब मोबाइल के अंदर न तलाश कर सके तो उसके लिए किताब आती है दलाइलुल खैरात, उसके अंदर ये अमल बाकायदा आपको मिल जाएगा। अब इसकी तादाद आपको करनी है, तादाद के अंदर बहुत से सिलसिले हैं। एक अमल कोई लफ्ज़ 3 बार है, कोई 7 बार है, इसमें इशारे किनारे लिखे हुए हैं काबरीन ने। वो सिलसिला हमको ज़कात देते वक्त उस सिलसिले को नहीं करना है, हमको सिर्फ एक लफ्ज़ को एक ही बार पढ़ना है। उसके बाद इंशाअल्लाह जो जहाँ भी आप अमल करेंगे, जहाँ भी आप इसका वजीफ़ा करेंगे, जो इसका अमल आपको कराएगा, अगर आप इसके शौकीन हैं तो वो आपको बाकायदा बता भी देंगे और इसका नक्श भी आपको देंगे। इसका पूरा तरीक़ा इंशाअल्लाह वहाँ बताया जाएगा। हमारे यहाँ भी मामूल है, इंशाअल्लाह हम भी इसको बाकायदा बताया जाएगा। जो हमारे यहाँ इसकी ज़कात देंगे, हमारे ज़ेर निगरानी, उनको इंशाअल्लाह इसका पूरा वजीफ़ा बताया जाएगा और इसको बाकायदा लिखा हुआ जो नक्श होगा वो आखिरी दिन यानी कि तीसरे रोज़ उसका नक्श भी हम अपने हाथ से लिखा हुआ उन सबको बाकायदा हदिया देंगे। वो नक्श भी मिल जाएगा, उसकी मुकम्मल इजाज़त भी दी जाएगी। अब इसकी तादाद हमें कितनी पढ़नी चाहिए? बहुत से अकाबरीन के यहाँ इसकी तादाद एक मरतबा मैंने बताई, अभी अर्ज़ किया आपके सामने, 1 बार भी है, 3 बार भी है, और बहुत सौ के यहाँ 121 मरतबा है, बहुत सौ के यहाँ 142 मरतबा है। सब तादाद अलग अलग हैं, मगर इसकी जो एक तादाद और है, जो आदमी इस अमल को सफ़र मुज़फ़्फ़र में ना करना चाहे, सफ़र मुज़फ़्फ़र वो चाहता है कि इसकी तादाद पूरी करें, तो इसकी एक तादाद और लिखी है उलमा सालिहीन ने कि जो शख्स इसको 40,000 मरतबा मुकम्मल कर ले, चाहे वो कितने रोज़ में हो, 40,000 मरतबा इसकी तादाद मुकम्मल करनी है। वो तादाद करने के बाद तो वो शख्स जो इसकी तादाद मुकम्मल करेगा और शरीयत का पाबंद रहेगा, नमाज का पाबंद रहेगा, तमाम अहकाम इस्लामी अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएगा, सिद्क़ मक़ाल अक़ल हलाल पर अमल करेगा, तो इंशाअल्लाह वो आदमी, उसकी कोई भी ज़रूरत ऐसी नहीं होगी कि उसने सोचा उधर वो काम अल्लाह ने उसका कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला उसको इसमें आज़म की सलाहियत भी अता फरमा देंगे, जो शख्स इसको 40,000 मरतबा करना चाहे। अब जो हमारे यहाँ इस वक्त सफ़र मुज़फ़्फ़र के अंदर जो ज़कात दी जाएगी, वो ज़कात हमारे यहाँ पहले रोज़ जब एतकाफ़ होगा, एतकाफ़ मगरिब के बाद, यानी कि अगर हमने एतकाफ़ कराया 7 तारीख़ में, तो हम 6 तारीख़ में शाम को बाद नमाज मगरिब एतकाफ़ में बैठ जाएंगे। नियत करने के बाद 3 दिन का एतकाफ़ होगा। उसके बाद इस मगरिब से लेकर के अगली मगरिब तक, यानी कि 24 घंटे के अंदर इसकी तादाद 121 मरतबा मुकम्मल करना है, और उसके बाद अगले 24 घंटे 121 मरतबा करना है, और उसके बाद फिर 125 मरतबा। उसके बाद आखिरी दिन होगा, उसमें और दूसरे ज़िक्र व अज़कार भी होंगे, दूसरे औराद व वज़ाइफ कराए जाएंगे, और फिर बाकायदा दुआ होगी और अपने हाथ से लिखा हुआ नक्श हिज़्बुल बहर का, जो हमने असल तरीक़े से हमारे अकाबरीन, हमारे उस्ताद मोहतरम
हज़रत वालिद मोहतरम अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं हैं, उन्होंने अपने हाथ से उस नक्श को लिखा था। वो नक्श भी इंशाअल्लाह आपको हम बतौर हदिया इनायत फरमाएंगे। उसके जो जिस शख्स को नक्श चाहिए, उसकी तादाद चाहिए, वो तादाद भी इंशाअल्लाह हम उसको बता देंगे। उसके लिए आपको मैं एक बात अर्ज़ किया करता हूँ कि उसके अमल करने के लिए अपनी जो हमारी मस्तूरात हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, अगर वो इस वीडियो को हमारी देख लें, ये बात हमारी वहाँ तक पहुँच जाए और वो इसका अमल करना चाहें, तो अपने यूट्यूब के अंदर प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर के अंदर हिज़्बुल बहर नोट करें उर्दू के अंदर, तो वह हिज़्बुल बहर सामने आ जाएगा। उसका ऐप अलग से बना रखा है, वो ऐप सामने आ जाएगा। उसको डाउनलोड करें और फिर उसको याद कर लें। ये या अल्लाहु या अली या अल्लाहु या अल्लाहु या अलीयु या अज़ीमु इस तरह की शुरू है। शुरू यहाँ से होता है और आखिर इसका जो होता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन पर आखिर होता है। ये पूरा है। इसको इंशाअल्लाह बाद में पढ़ के बता दिया जाएगा। जो अकाबिरीन हज़रात, जो हमारे मुतमन्नी, जो इस अमल के शायकीन हज़रात हैं, वो हमसे रब्ता कर लेंगे 4-5 तारीख में सफ़र मुज़फ़्फ़र की। तो इसका अमल बाकायदा इंशाअल्लाह सफ़र मुज़फ़्फ़र की तकरीबन 6 तारीख में बाद नमाज असर मगरिब से पहले एतकाफ़ की नियत करके जो लोग हमारे यहाँ आना चाहेंगे वो इंशाअल्लाह उसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद उनकी मुकम्मल निगरानी भी की जाएगी और इस बार उनके साथ में ही अमल मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह करूँगा और इसका फिर बाकायदा मुकम्मल बातें बताई जाएंगी। इसके पूरे औराद व वज़ाइफ किस तरह हमें करना है, कैसे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये अमल हमारी जानकारी के हिसाब से है, इससे अफजल कोई भी अमल नहीं है। ऐसा अमल है जब आपने यानी शेख अबुल हसन शाह जी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनकी कश्ती तूफ़ान के अंदर घिर गई, तूफ़ान ने उस कश्ती को घेर लिया, तमाम उनके रफ़ाक़ा, तमाम उनके मुरीदीन साथ में थे, वो कश्ती मुकम्मल घिर गई और जिधर से वो चले थे उधर वापस कश्ती होने लगी, यानी वो सफ़र हज पर जा रहे थे। तो उन्होंने अपने साथियों को ये हुक्म दिया, अपने मुरीदीन को ये हुक्म दिया कि इस दुआ को पढ़ो। वो खुद पढ़ते रहे, तमाम साथी उनके पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उनका तूफ़ान ख़त्म हुआ और वो सफ़र हज पर रवाना हो गए। सफ़र हज उन्होंने मुकम्मल करने के बाद उसी वक्त उन्होंने सफ़र हज किया और उनके बारे में बहुत से अकाबिरीन ये भी लिखा है, मैंने पढ़ा है उसको किताबों के अंदर। कुछ अकाबिरीन ने ये नकल किया है कि हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मामूल 40,000 बार दरूद शरीफ मुस्तकिल पढ़ा करते थे। ये होती हैं अल्लाह वालों की बातें, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लह, और 40,000 बार दरूद शरीफ मुस्तकिल पढ़ा करते थे। ये उनका मामूल था और बहुत सारे मामूल उनके हुआ करते थे। तो उनके बारे में बहुत सारी रिवायत किताबों के अंदर अकाबिरीन ने लिखी हैं। तो ये पुरानी कोई वजीफ़ा नहीं है, लेकिन इसमें मुकम्मल आयतें कुरान करीम से, अहादीस से ली गई हैं। तो इसको हर शख्स पढ़ सकता है। इस अमल के करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अकाबिरीन ने इस अमल को क्यों किया? इससे अपनी नफ्स की इस्लाह भी होती है, शैतान से हिफाजत होती है, नफ्स से भी हिफाजत होती है। और हमारे जो दुश्मन आजकल उम्मत मुस्लिमा जो घिरी हुई है तूफ़ानों के अंदर मुस्तकिल तरीक़े से, उसके लिए बहुत बेहतरीन ये अमल काम करता है। अपने दुश्मन की चालों को नाकाम करने के लिए ये अमल बहुत ज़रूरी है। तो इस अमल को हम कर सकते हैं अगर हम चाहें। ये महीना सफ़र मुज़फ़्फ़र का जो महीना आ रहा है, ये इस अमल की ख़ास मुनासिबत यहाँ से इसको हासिल होती है। यानी सफ़र मुज़फ़्फ़र का वो टाइम था जिस वक्त वो गालिबन उनको ये इल्क़ा हुआ था, ये अमल, ये वजीफ़ा जब उनको मुराक़बे के अंदर या ख़्वाब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उन्होंने तालीम फरमाई। ये गालिबन सफ़र मुज़फ़्फ़र का ज़माना था, उस वक्त ये अमल उनको मिला था। मेरे दोस्तों, जो भी ये अमल करना चाहे, अब इसके बाद एक अमल और है जो सफ़र मुज़फ़्फ़र को ख़ास मुनासिबत है। वो अमल है सूरह कुरैश का, यानी लीलाफ़ कुरैश। ये पूरी जो 30वें पारे के अंदर एक सूरत है, उसका एक अमल है। उसकी बहुत सारी तादादें काबिलीन ने लिखी हैं, 1.25 लाख भी है, 40,000 भी, 70,000 भी है। और उसकी तादाद इंशाअल्लाह बड़ा वजीब उसके लिए भी, अगर दुश्मन आपका ज़बरदस्त है, आपका दुश्मन आपको मारने पर लगा हुआ है, आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और या आप जंगल का सफ़र कर रहे हैं, तने तना है, पैदल का सफ़र है और जंगल खूंखार जानवरों से भरा हुआ है, वहाँ से आपको सफ़र करना है, तो उसके लिए अगली वीडियो में जो अगला मौका हमें अल्लाह ताला मरहमत फरमाएंगे, उस वीडियो के अंदर सूरह कुरैश का वो अमल जो एक हफ्ते में मुकम्मल हो जाया करता है,
उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब आपको अगर ये अमल करना है हिज़्बुल बहर का जो हमने फ़िलहाल आपको बता दिया है, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने से पहले उसका इस्तकबाल करने से पहले इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दें, इतना अपने दोस्तों के अंदर फैला दें, ताकि सब लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जो उस महीने में अमलियात बताए जाएंगे वो बहुत ख़ास महीना है अमलियात के मुताल्लिक़। अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपको सूरह कुरैश के बारे में बताया जाएगा। और ऐसे ही हमारा जो आप वीडियो के शायकीन हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको आगे शेयर करें और अल्लाहु समद ज़रूर लिख करके अपना नंबर डाल दें, ताकि हमें मालूम हो कि आपने वीडियो देखा और आप अमल करने के शौकीन हैं। तो आपको उसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा। जब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।